Hello everyone, welcome to our show Just Talking. And today we have with us Parth Narang, who is a cricket expert, and also Somraj Sikarwar, who is not a cricket expert, but he is here with us to give an outsider view. And also he goes by his channel Kahanikar Somraj on YouTube. Please subscribe and share his channel. Our friend Parth has a case to make. He thinks Virat Kohli should leave the captaincy to focus more on his batting, focus more on his game. What do you think, Somraj? Is it so? I want to start with you. क्वेश्चन क्या था? We're just talking. We're just talking. Just talking. We're just talking. Should Virat Kohli leave the captaincy to focus on batting? अरे डेफिनेटली एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट मी, मेरे ख्याल से पूरा इंडिया यही चाहता है इस वक्त. इवन अनुष्का शर्मा भी चाह रही होगी, बट बोल नहीं पा रही है वो. ओके. विराट को भी अंदर से पता है, इसलिए वो बीच मैच में मतलब जो ये हरकतें थी ना, वो बीच मैच वाली, ये मतलब कहीं ना एक अंतरात्मा तो होती है ना इंसान की. वो भी सोच रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है. कौन सी बीच मैच वाली हरकत है? बीच मैच में जो उसने रोहित को कैप्टन इंट्रोड्यूस करा था अभी लास्ट टू लास्ट मैच में, आई गेस T20. अच्छा. और थर्ड में भी करा था, आई थिंक. थर्ड में तो इंजर्ड हो गया था वो, सॉरी. तो वो जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उसकी भी अंतरात्मा इस बात को गवाही नहीं दे रही है, पर एक ईगो नाम की भी चीज होती है, तो वो भी भाई को मेंटेन तो करनी है. भाई तो बहुत आगे, तो वो भी ठीक है. भाई का मतलब जेन्युइन है, मैं उसको कुछ रिस्क वो नहीं दूंगा, मतलब ब्लेम नहीं करूंगा, पर छोड़ तो देनी चाहिए. T20 की तो सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए, फिर आगे अब धीरे धीरे बाकी होके भी छोड़ो. धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ाना चाहिए. मतलब स्टार्टिंगली हाँ T20 यस, स्पेशली फॉर द क्योंकि यहाँ पे पूरा नेशनल की बात है. अब एक माना कि वो बंदा बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बाकी भी जो 130 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं, उनकी भी तो कुछ इच्छाएं मारनी नहीं चाहिए ना. Well, that was a funny part of it. So let's see what Parth has to say about it. Well, we know you were serious. The funniest part of it. All right. So the question asked by you was whether Virat Kohli should or should not leave his captaincy and focus on his batting more on, right? So the question first which we should be talking about is what type of a captain we are looking for to lead the Indian cricket team, and rather than whether Virat Kohli should take the captaincy or is there any other player who should take the captaincy. So as a cricket fan myself, and if I look up at the squad that we currently have, if we talk about the bench strength that we have, so I personally feel that India is as of now having a very good bench strength. We are young. We have a very young bench strength. If you talk about all-rounders, we have a good squad of all-rounders coming up from like recently we have seen from South also. Natarajan has come in. Earlier we used to have very less people. We always had players from South India. Be it Dravid now or was 15 years ago. Nowadays- Dravid was, Kumble was, Lakshman was. Nowadays, if I'm talking about all-rounders. All-rounder, sir. Kumble Okay. was not an all-rounder. Dravid was not an all-rounder. Okay. Ashwin is one of them as of now. Ashwin is one of them. So if we look at the performance of our like Virat Kohli, of our captain in IPL, if we talk about RCB for the past so many seasons, if we actually see their squad, so it's not that they have a very bad team, they have a very good squad. AB de Villiers was there. Many such players were there in bowling side, all-round team, batting end. But what Gayle I was actually also there feel once a time. कि Gayle was also there. कैप्टन कैसा होना चाहिए? कैप्टन वही जो हमने लीडरशिप की बातें करते हैं कि लीडरशिप के 7 स्टेजेस होती हैं. एक होता है कि सिर्फ नाम के लिए कैप्टन है तो उसको कैप्टन बोलना. एक होता है कि वो बंदा कैप्टन का हकदार है तो मैं उसको लुक अप टू करता हूँ. एक होता है कि उसने अपने आप को प्रूव किया है कि हाँ मैं उस स्किल सेट के साथ हूँ कि मैं उस चीज में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो मैं उस स्किल सेट को बाकियों के अंदर भी डाल सकता हूँ. क्या मेरे स्किल सेट से सीख कर लोग लीडर्स बने, ना कि सिर्फ फॉलोअर्स बने. द पॉइंट इज दैट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, खासतौर से उस कंट्री में जिस कंट्री में इतनी ज्यादा टैलेंट है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन प्लेइंग 11 या लोग ही चाहिए हमें.
सिर्फ 11 लोग चाहिए, उसमें भी कैप्टन अगर हम एक ऐसे पर्सन को देखते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस कैप्टन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो। ऑल ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो, प्रोफेशनल लाइफ में भी कह रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में भी कह रहा हूँ, क्योंकि ऑफ द फील्ड भी वो लोग बहुत सारी चीजों को कॉपी करते हैं। वी गेट इन्फ्लुएंस बाय आवर लीडर, सो कॉल्ड लीडर। तो अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की जो पहले कैप्टन थे, उसके पहले अगर हम बात करें पास्ट में जितने भी कैप्टन रहे हैं, सौरव गांगुली रहा है, बीच में द्रविड़ रहा था, उसके पहले जाते हैं तो शास्त्री, गावस्कर जो भी हैं, जिस भी हम एरा की वाला जो एरा है, इसको हम गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कराते हैं कि हमें आज इंडियन क्रिकेट टीम के हम अगर प्लेयर हैं तो हमारे पास टैटू होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी दाढ़ी ज्यादा अच्छी दिखनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम फेशियल लुक्स में बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, हमें अग्रेसिव होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको दर्जा दिया जा रहा है रादर देन एक्चुअली द गेम। तो अभी हम देखते हैं कि जितने भी प्लेयर्स हमारी टीम में खेल रहे हैं तो उनका मेन फोकस, हम कहते हैं कि जैसे कल हर्षा भोगले ने इंटरव्यू में पूछा कोहली से कि कोहली, यू हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट द फिटनेस लेवल, यू हैव ऑलवेज बीन जजिंग द परफॉर्मेंस बाय द फिटनेस लेवल, सो वेल हाउ वुड यू जज योर ओन परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज। मतलब फिटनेस लेवल की हम बात करते हैं कि यो टेस्ट में हमें अच्छा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, हम फिट लोगों की बात करते हैं। इंजमाम उल हक तो फिट नहीं था, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जो फिट नहीं थे, सहवाग एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिट नहीं था, बहुत प्लेयर ऐसे रहे थे जो, लक्ष्मण फिट नहीं था बट रोहित उनका शर्मा फिट नहीं है अभी की बात करें तो। गेम में था। हाँ, तो बट वही है कि ऐसे तो ऋषभ पंत की अगर हम बात करते हैं तो वो तो ही वर्किंग ऑन हिज फिटनेस, बट मुझे नहीं लगता कि ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है कि फिटनेस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। हम इंडियन क्रिकेट टीम है, कम ऑन, मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम आईसीसी में दे रहे हैं, सबसे ज्यादा टीआरपी हम उठा रहे हैं, हर चीज में हम आगे कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पोटेंशियल भी क्रिकेट का सबसे ज्यादा हम इंडिया में देख के चलते हैं, तो फिटनेस एक बेंचमार्क होना जरूरी है। बट मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं, मुंबई इंडियंस एक एवरेज स्किल सेट की टीम थी, बहुत ही मिक्स थी, मतलब एवरेज नहीं बोलूंगा, मिक्स थी, अच्छे भी थे, मिक्स भी थे, एक्सपीरियंस लोग भी थे, उनके कोच में जॉन्टी रोड जैसे लोग थे, मतलब पॉइंटिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे था, सचिन, जयसूर्या, सब लोग थे। उसके बाद जब वो एरा हट गया, उसके बाद भी उसको बरकरार रखना, बैक ऑन बैक सीरीज जीतते रहना, तो एक कैप्टनसी की जब फील्ड पे मैच देखते हैं ना, तो एक नर्वसनेस होती है, या फिर एक इंस्टिंक्ट होता है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए तो मैं गेम को बचा ले जाऊंगा, एक ऐसी सिचुएशन में जब मेरी गेम हाथ से निकल रही है। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हमने इंडिया बांग्लादेश का देखा था, इंडिया इंग्लैंड का देखा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखा था, धोनी कैप्टन था, जब हम चेस कर रहे थे, जब हम बैटिंग नहीं कर रहे थे, सॉरी चेस नहीं कर रहे थे, तब हम डिफेंड कर रहे थे, तब हम डिफेंड कर रहे थे, और डिफेंड होते समय भी विकेट बहुत ज्यादा थी ओपोनेंट्स के पास, बॉलें बहुत ज्यादा बची थी, लेकिन रन बहुत कम बनाने थे, तब भी हमने मैच जीता हुआ है। बट ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है, जैसे श्रेयस अय्यर की भी मैं बीच में बात करता हूँ, जैसे मैंने दिल्ली कैपिटल्स का मैच देखा था आईपीएल का पिछला सीजन जो खत्म हुआ है, पहला मैच जो दिल्ली कैपिटल्स जीती थी, उसमें श्रेयस अय्यर को खुद नहीं पता था कि वो जीतने वाले हैं, जब वो जीते तो एकदम ही पागल हो गया था कि ये कैसे जीत गए। मतलब ये थोड़ी सी इमेच्योरिटी एक वो थी कि ही डज नॉट नो द नेक्स्ट स्टेप, उसको खुद नहीं पता कि मेरा कंट्रीब्यूशन उस टीम में क्या है, तो वो मोर और लेस टीम के भरोसे चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है, टीम के भरोसे चल रहा है, अगर उसकी टीम अच्छी है तो अच्छा करेगा, तो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है, खुद का इंस्टेंट इतना काम नहीं आ रहा। द रीजन आरसीबी एक भी नहीं जीती, एक तो जीतना चाहिए था, या क्लोज तो आते जीतने के। फाइनलिस्ट की अगर हम बात करें, इतने सीजन में कितने फाइनल्स में आरसीबी गई है, या कितने क्वालिफायर्स में उनका परफॉर्मेंस रहा है। इसी तरीके से अगर हम पिछले सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, कोहली का परफॉर्मेंस हो गया, साल की बात करें, 2020 की बात करते हैं अगर हम, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कोहली इज ओके एज ए कैप्टन, बट लोग उसकी ना बैटिंग से ज्यादा, उसके हार्डवर्क से ज्यादा, उसकी फिटनेस से ज्यादा लोग गलत कॉपी करने लग गए हैं उसकी चीजों को, उसके एटीट्यूड को कॉपी कर रहे हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी कर रहे हैं, उसके एडवर्टीजमेंट को कॉपी कर रहे हैं, उसके लाइफस्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। रोहित शर्मा ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं है, रोहित शर्मा लगी नॉर्मल लाइफ में चल रहा है सारी चीजें, मतलब मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लीडर हो सकता है। अभी T20 जो 4th T20 था, जब उसको कैप्टनसी दी गई थी सेकंड हाफ में, जब कोहली बाहर बैठ गया था, उसकी जगह धवन फील्डिंग करने आया था, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट था यार कि डिफेंड करते हुए मैच जीतना, नंबर 1 T20 टीम के अगेंस्ट। हम देख रहे थे कि बेयरस्टोड खेल रहा है, सब लोग अच्छा खेल रहे हैं, उस समय पे रोहित शर्मा हर एक बॉल पे, और ऐसी काबिलियत रोहित उसके अंदर थी, रिकी पॉइंटिंग के अंदर थी, रिकी पॉइंटिंग हर एक बॉल पे फील्डिंग सेट करता था। एक कैप्टन होता है जो हर एक ओवर में करता है, इधर जा उधर जा,
एक कैप्टन होता है जो हर एक बॉल पे फील्डिंग सेट करता है। रिकी पॉन्टिंग उनमें से एक था, तो मुझे उसकी एक चीज अच्छी लगती थी। तो शर्मा ने भी वो चीज करी इस T20 में, जो मैंने देखा कि यार ये चीज विराट दुनिया कौन से डिफरेंट है, ओवर में ये क्योंकि बेंच पे गया था? ये मुझे ध्यान नहीं है कि कौन से ओवर में गया था, आई बल्कि थिंक वो एंडिंग में मॉर्गन के गया था, आउट होने के बाद, सेकंड इनिंग्स के एंड में गया था, वो मॉर्गन के आउट होने के बाद गया था। सेकंड इनिंग्स के एकदम एंड में गया था वो ऑलमोस्ट, हाँ, जहां और तक मुझे याद आ रहा है। तब तक जो उनके मेजर प्लेयर्स थे वो आउट हो चुके थे, सिर्फ वो बचा था तुम्हारा स्टोक्स, और स्टोक्स कुछ खेल नहीं पा रहा था कुछ खास। वो स्टोक्स मेन का 90% परफॉर्मेंस काम पता ही अपना है करके कि जाया था। मैं सिर्फ एक पॉइंट दे रहा हूँ, मैं अपनी डिबेट नहीं दे रहा, अभी आपको सिर्फ एक पॉइंट आपका ठीक करेक्ट ठीक, कर रहा हूँ कि राइट ऐसा राइट नहीं है राइट। कि रोहित शर्मा ने मैच जिताया, मैच कोहली निकाल के गया था। तो मतलब एक होता है कि मैं कहने का मतलब ये है कि हर अपने आपके टीम में जो 11 लोग हैं या जो 15 लोग हैं, उनको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है और मेरे पे ट्रस्ट किया जा सकता है, और मैं भी उतना ही मेहनत करके उतना ही सक्सेसफुल हो सकता हूँ। भले ही मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आया हूँ, भले ही मेरे पास टाटू नहीं है, भले ही मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं फील्ड में भी अच्छा कर सकता हूँ। मुझे कूल बनने की जरूरत नहीं है अच्छा करने के लिए, टीम में रहने के लिए मेरी परफॉर्मेंस मेरे लिए आगे मैटर करेगी और मैं अपने कैप्टन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड ये कब होगा, जब कैप्टन भी वो थोड़े हार्ड कॉल्स लेगा, जैसे उसने 5th T20 में लिया, जिसको देख के मैं बहुत खुश हुआ कि फाइनली कोहली ने ओपनिंग की, एक कैप्टन की पारी खेली, बंदे ने आके 80 रन मारे और रोहित शर्मा के साथ गए कि चलो आओ दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन जाके एक बड़ा रन बोर्ड पे खड़ा करते हैं, और दोनों ने करके दिखाया। तो रोहित शर्मा की चीज मुझे अच्छी लगती है कि मतलब वो बंदा हर प्लेयर को समझ रहा है। उसने पांड्या को समझा, उसने शार्दुल ठाकुर को समझा, हर एक बॉल पे बता रहा है कि अब तुझे ऐसा करना है, अब तुझे ऐसा करना है। ये कैपेबिलिटी धोनी के अंदर भी थी, तो मुझे लगता है कि ये चीजें एक यंगस्टर को हेल्प करेगी जो कोहली में मिसिंग है। अब ये कहना कि कोहली को कैप्टेंसी से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, मुझे लगता है कि शर्मा को मौका बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों सेम एज के हैं, दोनों सेम एरा के हैं, साथ में खेले हैं अंडर 19, तो वाई नॉट शर्मा? श्योर, शर्मा में ऐसी क्या कमी है जो कोहली में एक्स्ट्रा है? मुझे ये एक सवाल था कि शर्मा भी तो अपने उस, कहते हैं ना, कैप्टेंसी जब तक उसको नहीं मिलेगी हम कैसे रिलाई करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे सचिन बैटिंग में अच्छा था, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो अभी फिलहाल ऐसा कर देना चाहिए कि कोहली शुड फोकस मोर ऑन हिज ओन बैटिंग रादर देन हैंडलिंग अ टीम। शर्मा के साथ मुझे लगता है कि टीम ज्यादा कंफर्टेबल है, शर्मा के साथ मुझे लगता है कि वो प्लेयर्स का पोटेंशियल उभार के लेके आता है मोर देन कोहली। ये नहीं बोल रहा कि कोहली में नहीं है, मैंने बोल रहा कि मोर देन कोहली शर्मा और बेटर कर सकता है इफ यू टॉक अबाउट फील्डिंग ऑल्सो। So that's it. Otherwise, that's my case है. Not saying कि कोहली is better captain और शर्मा is a better captain, but as of now मुझे लगता है कि शर्मा को मौका इट्स हाई टाइम की दे देना चाहिए। दोनों की एज भी बढ़ रही है, क्योंकि इनको नहीं देंगे तो फिर आगे चल के नई जनरेशन भी फिर आने वाली है। वेल ब्रो एक टाइम के बाद तुम्हारे, धोनी ने भी कैप्टेंसी दे दी थी। बिल्कुल। वेल ब्रो तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट्स थे, काफी पॉइंट्स इसमें मुझे अच्छे भी लगे। आई थिंक वी शुड स्टार्ट टॉकिंग विद कि मतलब कोहली को कैप्टेंसी मिली कब? उसे आई थिंक सबसे पहले टेस्ट में कैप्टेंसी मिली थी 2015 और 16 में। उस टाइम पर धोनी ने जब रिटायर लिया था। हाँ, धोनी ने रिटायरमेंट, हाँ, टेस्ट से पहले ही ले लिया था उसने। टेस्ट से ले लिया था, टेस्ट से ले लिया था। तो उस टाइम पर आपको याद होगा कि इंडिया की टेस्ट में हालत क्या थी। इंडिया किसी भी कहीं भी बाहर खेलने जाती थी, इंडिया जीत के नहीं आ रही थी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाए, चाहे इंग्लैंड में जाए। इवन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इंडिया में भी हरा के चले गए थे। देखो, कैप्टेंसी में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अपने कार्ड्स को सही से यूज करना आना, और एक होता है प्लेयर्स को बनाना। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप अपने कार्ड्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो, जो कि धोनी में थी, भली भांति थी, इसीलिए उसने गांगुली की बनाई हुई टीम से 2011 वर्ल्ड कप निकाल लिया। बट धोनी के अंदर एक चीज लैकिंग थी, उसको प्लेयर्स बनाने इतने अच्छी तरीके से नहीं आते थे। इसीलिए एक टाइम ऐसा आया 2014-15 में जब इंडिया के पास बॉलर्स नहीं थे। इंडिया वाज टोटली अ बैटिंग टीम, और टेस्ट क्रिकेट में जब तक आपकी टीम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, आप नहीं जीत सकते। आप सिर्फ अपनी लीडरशिप के दम पर टीम को नहीं जिता सकते जब तक आपके पास उतना अच्छा स्किल सेट नहीं है। जब आप कंपीट करने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, आपको पूरी की पूरी टीम चाहिए, आप सिर्फ अपनी लीडरशिप से नहीं जीत सकते हो। दैट इज वन पॉइंट। वो चीज कोहली ने आगे बहुत अच्छी करी, उसने अपने प्लेयर्स को अच्छे से बैक करा। चाहे वो आज ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर है, चाहे KL राहुल है, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छे से बैक करा। उसी की वजह से आज हमारी बॉलिंग का लेवल देख लो, जो 5 साल पहले हम बहुत पीछे थे, अब हम फिर से टॉप पे आ गए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे मैंने देखा है विराट कोहली क्रम्बल कर जाता है कई बार क्रिटिकल सिचुएशंस में आके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा कम कर दें।
क्योंकि उसने टीम को बनाया है आफ्टर गांगुली। 15 साल बाद अगर किसी ने टीम को रिसर्जेंस मोड में कोई लेके आया तो वो विराट कोहली है। और सेकंड पॉइंट है कि वो ओडीआईज में जब कैप्टन बना, ओडीआईज में ऑलरेडी इंडिया बहुत अच्छा कर रही थी, उसने उस चीज को अच्छे से मेंटेन करा है। और उसकी अगर बैटिंग की बात करें, फिर चाहे टी20 में भी ले लो उसकी कैप्टनसी, टी20 में भी उसने फोड़ा ही है कैप्टन बनने के। इंडिया को वो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप पे लेके आया है। अब देखो कैप्टनसी के दो केसेस बनते हैं, या तो आप न्यूजीलैंड की तरह करो, या आपका कैप्टन ही हो आइडियल केस केन विलियमसन, द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, या फिर आप चलो इंग्लैंड की तरह हर फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन अलॉट कर दो, जो जिसमें बढ़िया है उसको उसमें कैप्टन बना दो। बट आई थिंक, मुझे नहीं लगता कैप्टेंसी की फॉर्म में कोहली ने अभी तक ऐसा सिंबल दिया है कि इंडिया को इंग्लैंड वाले ट्रैक पे जाने की जरूरत पड़े। अब कंसर्न है विराट कोहली की बैटिंग का टेस्ट फॉर्मेट में, टी20 और ओडीआईज में वो कंसर्न नहीं है। और टेस्ट में भी अगर आप उसके सिर्फ स्टैट्स उठा के देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो फालतू की बात है, कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल का देखो तो विराट कोहली का ग्राफ काफी डाउन जा रहा है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट भी आ सकता है आज उससे, अगर आप कैप्टेंसी ले लेते हो तो विराट कोहली को ये चीज बहुत बुरी तरह से डिमोरलाइज भी कर सकती है। इसलिए उसने इंडिया को इतने अच्छे फिगर्स दिलाए हैं। कैप्टन बनने के बाद उसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़े तरीके से बढ़ी थी कोविड से पहले तक। उस 2-3 सालों में उसने वो लगातार वो टॉप के रन गेटर्स में रहा था टेस्ट क्रिकेट में भी। तो आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा डीमोरलाइज हो जाएगा अगर उसको मौका नहीं, रोहित शर्मा उस पीक पर गया ही नहीं है ना कि उसको कैप्टन बनाओ, उसको वो चीज का वो है ही नहीं, उसके पास वैसा एक्सपोजर ही नहीं है, उसके डिमोटिवेट होने का वो केस ही नहीं बनता। विराट कोहली की बात है जो पिछले 4 साल से 5 सालों में इंडिया को टॉप पर लेके आया, अपनी बैटिंग को भी वो टॉप पे लेके आया टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि पहले वो सिर्फ ओडीआईज के लिए जाना जाता था। कैप्टन बनने के बाद वो इतना तगड़ा प्लेयर बना है बैटिंग में भी टेस्ट क्रिकेट में। अगर आप उससे कैप्टेंसी छीन लेते हो, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भी आ सकता है टीम पर, और कोहली पर खुद पर इससे भी बुरा इंपैक्ट आ सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डरना चाहिए कि यार कोहली को ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। इट इज सॉर्ट ऑफ अपीजमेंट आल्सो, बट स्टिल आई थिंक वी शुड गिव हिम सम मोर टाइम। रवि शास्त्री ने अभी एक रिसेंटली बात बोली थी कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि वी कैन प्ले विद 2 प्लेइंग 11। एग्जैक्टली मतलब वी कैन प्ले विद 2 प्लेइंग 11। तो लेट्स मतलब व्हाई नॉट टेक दिस एज एन इंस्टेंस की 2 प्लेइंग 11 है, एक प्लेइंग 11 कोहली की और एक प्लेइंग 11 शर्मा की। तो ऐसा कैसा रहेगा कि अगर हम एक सीरीज पे सिर्फ शर्मा को भेजें, कोहली ना खेले उसमें, और एक सीरीज में कोहली चाहे शर्मा ना खेले, तो फिर तो हम अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेंथ को यूज ही नहीं करेंगे। और कोहली ने अभी तक जैसे 3000 बेंच स्ट्रेंथ तो आपने चेक कर लिया है, टी20 में उन्होंने खेल लिए हैं शायद 3000 मैच कोहली ने, बट आज तक एक भी सेंचुरी नहीं आई है। तो सेंचुरी आई थिंक मैटर नहीं करती, सेंचुरी मैटर नहीं करती। टी20 20 ओवर का गेम है सर, ओपनर वो है नहीं। ओपनर अगर वो आते हैं तो वो शीट एंकर बन के खेलते हैं। डिपेंड ये करता है टी20 में भी, अगर वो सबसे पहले खेलने आ रहे हैं और वो एंड तक खेल रहे हैं, टीम को जिता करके लेके जा रहे हैं। सेंचुरीज तो ठीक है भैया, माइकल बेवन इतना ग्रेट प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का, उसके पास कितनी सेंचुरी के विनिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो सर, डोमेस्टिक क्रिकेट चीज अलग है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को ही अगर आप सारा बेस मान रहे हो क्रिकेट का, देन आई थिंक मेरे और आपका आई थिंक आईपीएल भी इंटरनेशनल ही है आज की डेट में। नहीं है, कहीं नहीं है इंटरनेशनल, डोमेस्टिक क्रिकेट है। कितने कैप प्लेयर्स हैं उसमें, कितने भी स्टार इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलने आते हैं उसमें, लेकिन वो इंटरनेशनल गेम थोड़ी उसका लेवल का अगर हम बात करते हैं, व्हाई डू यू वांट नहीं व्हाई डू यू वांट के जो कैप्टन जो टीम इस समय आपको दे रही है इतने सालों से। सॉरी वन मोर थिंग, देयर इज वन मोर थिंग। आपने एक बात बोली थी कि विराट कोहली से गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, दैट इज पीपल्स प्रॉब्लम। जब तक इंडिया को अच्छा मिल रहा है उसकी बैटिंग में, उसकी कैप्टेंसी में, आई थिंक इट शुड नॉट कंसर्न अस। ये बात बिल्कुल सही है। आप किससे क्या सीखते हो ये आपके हाथ में है, वरना मैं इनकी बात सुन के मैं तो ये सोच रहा था कि अब टीम 11 में आने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि आप अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म करो और हाथ में 2 टैटू। और अगर प्लेयर को देख के अगर हमें लगता है कि वो अच्छा है, तो गांगुली के टाइम पर जब द्रविड़ वाइस कैप्टन था और वो बीच में कैमियो कैप्टन बनता था, तो ये लगता था कि ये बंदा जब कैप्टन बनेगा ये आइडियल प्लेयर है, ये एकदम आइडियल 100% आइडियल है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता।
but he collapsed. Indian team collapsed when he became captain. right. बट Dravid So is the person जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आज की टीम को खड़ी करने में, जो वो यंगस्टर्स है बना रहे। वो है और मैं आज भी ये मानता हूँ राहुल द्रविड़ अगर हेड कोच बन गया तो आई थिंक फिर से इंडिया कोलैप्स कर जाएगी। ही इज मोर फिट एज अ मतलब साइड रोल्स में वो ज्यादा फिट करता है। ही हैज मोर क्वालिटी, वो एक्सपोजर के लिए है ही नहीं वो बंदा। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है पब्लिक एक्सपोजर के लिए वो बंदा है ही। सो मुदित वाज सेइंग समथिंग। Well, हम लोग first तो of all, टॉपिक से welcome काफी भटक Udit. गए। You are for the first time in our show. Welcome. थैंक यू सो मच। I am also for the first time in the show. ओह हो गया अब आपका। अगर आप फोन को लैंडस्केप मोड में डाल देंगे तो काफी सही रहेगा शायद। सो इज इट फाइन नाउ? Yeah. Okay, what are your views, bro? ओके सो जैसा भी मैं क्लियर सुन रहा था कि क्यों रोहित शर्मा को लाना चाहिए, क्यों विराट कोहली को लाना चाहिए। Well, I don't feel any point over here कि जब तक एक कैप्टन, एक टीम आपको रिजल्ट दे रहा है इतने सीरीज से, इतने सालों से, बैक टू बैक, इफ यू लुक एट द स्टैट्स, बहुत सारे स्टैट्स में वो धोनी से भी आगे निकल चुके हैं। बहुत आगे। इवन इफ वी थिंक बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत सारे सीरीज में, बहुत सारे स्टैट्स में आगे निकल चुके हैं। एंड तो अगर आपको कोई कैप्टन अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, भले उसका एटीट्यूड अलग है, यू कैन नॉट कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ MS धोनी विद विराट कोहली। They are two different people at two different levels, so you cannot compare their way of treating the team. But yes, he was giving the result at his point of time by his own ways, and अब विराट कोहली अपनी तरीकों से दे रहा है रिजल्ट्स, जो कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो आई डोंट थिंक, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए नए कैप्टन्स को लाने के लिए, एंड या फिर नई टीम्स को लाने के लिए, या फिर आप तो अगर ऐसा हो कि सडनली आवर टीम स्टार्ट्स कोलैप्सिंग एंड रिजल्ट्स नहीं दे पा रही है, देन यू कैन थिंक ऑफ इवन एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट लीडरशिप। बट जब तक अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप सीरीज जीत रहे हैं इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, then I don't see any point in even having conversation about this, that we should drop Virat Kohli and bring Rohit Sharma as a captain. और अगर आप एक्सपेरिमेंट की बात करें तो आपने ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया। आप अपने टीम बी के साथ उतरे थे और वहां पे भी आपने अपना बेंच स्ट्रेंथ देखा, आपके कोई भी मेन प्लेयर्स नहीं थे। सो ऑन दैट लेवल इट्स फाइन। आप कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, आप देख रहे हो कि अगर हमारे जो प्रेजेंट प्लेयर्स हैं अगर वो नहीं चलते हैं तो हु इज आवर बैकअप। सो वो भी आप टेस्ट कर चुके हो, एंड वो भी आप टेस्ट करते रहते हो रह रहे के बीच बीच में। बट जब आपकी मेन टीम खेल रही है एंड वो मेन टीम आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन डिस्कसिंग अबाउट इट? आई डोंट अंडरस्टैंड। So Somraj, as an outsider, what do you think? Who does not have a keen interest in the cricket, especially, and but still you sometimes look some critical matches. So what do you think about Mudit's point? हाँ, उनका ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि क्या सही समय है या नहीं चेंज करने का, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाले हैं। और अगर ये एक्चुअल में शर्मा को लाना था, ये सब करना था 1 साल पहले, 2 साल पहले, ये सब चीजें होती, एग्जीक्यूट हो जाती, तब वो एक अच्छे से बिल्डअप होती अभी तक। अब एकदम से वर्ल्ड कप से कुछ महीनों पहले आप और कुछ या फिर 1 साल पहले आप एकदम से बदल देते हो तो प्रॉब्लम होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर कैप्टन चेंज करना हो तो जैसे 2019 वर्ल्ड कप हुआ, उसके तुरंत बाद या तो एक फॉर्मेट से कोहली को फ्री कर देते, जैसे इंग्लैंड ने किया। 2015 में टीम कोलैप्स करी तो उन्होंने 2015 में सारा कुछ चेंज कर दिया, सारी टीम नहीं खड़ी करती। तो 1 साल बाद वो टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। इसी तरह से या तो इंडिया को चलना चाहिए था, 2019 के बाद ही उनको हटा देना था विराट कोहली को किसी एक फॉर्मेट से। और वो आई थिंक टेस्ट तो स्पेशली नहीं है, T20s में, क्योंकि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस में दिखाया है बहुत अच्छे से, तो हम T20s में उसको चांस दे सकते थे। What do you think, Parth? What do you have to say? क्या लगता है आपको? टेस्ट, ODIs और T20s, इन तीनों फॉर्मेट्स में से उसने बोला कि कौन से एक्सपेरिमेंट नहीं फॉर्मेट करना चाहिए। अगर सारी चीजें सही चल रही हैं, जब कुछ दिक्कत आए तब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता। जब चीजें सही चल रही होती हैं तभी एक्सपेरिमेंट करना समझदारी है, रादर देन जब चीजें खराब हो जाएं तब एक्सपेरिमेंट करें हम, क्योंकि तब चीजें शायद और खराब हुआ संभाली ना जा पाए। अब
जो गाबा टेस्ट हुआ था उसमें ना शर्मा था ना कोहली था, उसमें रहाणे कैप्टन थे और हमारी एकदम बी टीम जीत कर आई है वहाँ पे। तो जैसा शोएब अख्तर बोलते हैं कि दिल गुर्दा चाहिए जीतने के लिए, तो दिल गुर्दा वाली जो बात है वो प्लेयर के अंदर खुद की होती है। ये बात भी सही है कि इन्फ्लुएंस होने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है। जो फॉलोअर है उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो क्या देख रहा है, वो चाहे टाटू है चाहे वो दाढ़ी है। बट अगेन, जब तक मौका नहीं देंगे शर्मा को तब तक हम जज नहीं कर सकते कि कौन बेटर कैप्टन है, क्योंकि अभी हमने एग्जैक्टली, उसका ये भी एक देखा नहीं है। ये काफी ये भी तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्टर है है ना। कि शर्मा का भी अब जितना समय बचा है, अगर उन तीन में से कि एटलीस्ट किसी एक फॉर्मेट में उनको एक थोड़ा लॉन्ग टर्म एक चांस मिलना, वो भी डिजर्व करता है वो पर्सन भी। T20 में मुझे लगता है शर्मा को दे देना चाहिए। और Well, ये एक what अच्छा what रहेगा I कोहली think के लिए is भी। कि ओडीआई में नहीं, T20 में दे देना चाहिए। well, अगर Why आपको do you कैप्टन think बिल्ड ODI करना में ही है तो T20 में दे देना चाहिए? क्या मुझे Why do you think that ODI में दे देना नहीं देना चाहिए और T20 में दे देना चाहिए? ऐसा क्या है मतलब खास? एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम T20। ऐसा खास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमआई परफॉर्मेंस अगर मैं उसको जिक्र करूंगा कि पास परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन एमआई का अच्छा रहा है। जब रोहित शर्मा ने T20 टीम को कैप्टन किया है तो भी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है, तो ये एक रीजन है। इसको ऐसा ऑल दो कोहली लास्ट 8 सीरीज कंसेक्यूटिवली जीत रहे हैं, वो भी बात नहीं, है, यहाँ पे ये भी है उसको ना हम कि हम नकार नहीं सकते। पहले T20 में देना चाहिए और फिर अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस और अकॉर्डिंग टू दैट टाइम सिनेरियो फिर देखना है कि ओडीआई को जाना है कि नहीं शर्मा को। अब जैसे जो टीम्स बस होती हैं, मतलब हो गया आपका वेस्ट इंडीज हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके साथ अगर आपका मैच है तो मुझे लगता है कि मौका दो आप, मतलब शर्मा को थोड़ा इन टीम के साथ शुरू करके देख ले। अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो फिर इंडियन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ये भी एक वेल फैक्टर है। ब्रो, मेरा एक पॉइंट वैसे है मेरे कि हिसाब से टाइम अगर किसी का निकल रहा है तो हाँ उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। टाइम दिनेश कार्तिक का निकल गया धोनी के एरा में तो वी कैन नॉट हेल्प इट। अगर आपको कैप्टन तैयार करना है तो यू शुड पिक अ वाइस कैप्टन फ्रॉम अ यंगर लोड whom you should give opportunity to lead the team sometimes, or at least 4 or 5 years younger, like KL Rahul, who has shown sometimes that he has a critical thinking at critical situations. He can think on his feet. But first, let him prove himself in batting for a little bit more longer. And also, I think Shreyas Iyer and Rishabh Pant are the two players who can be given opportunity to lead the team rather than Rohit Sharma. कह रहा था कि अगर जी। आपको कैप राइट या इट्स गॉन टू डार्क नाउ। अभी मार्वल में थे, अब डीसी में आ सो गए हैं। व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आप कैप्टन चेंज करना भी चाहते हैं, सो दिस इज ऑब्वियसली हाँ सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अभी आपका वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू सी मच चेंजेस। आप सिलेक्शन में चेंज, बट ऑब्वियसली लीडरशिप यू शुड नॉट सी द चेंजेस राइट नाउ, क्योंकि आपका वर्ल्ड कप अगले 2-3-4 महीने में है। बट हाँ, इफ समहाउ यू लूज द वर्ल्ड कप एंड यू डोंट विन, इवन इफ इट्स हैपनिंग इन इंडिया, जो कि आपकी कंडीशंस रहेंगी, और उसके बाद भी अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीतते हो, तो इस समय एक्चुअली इंडिया का काफी अच्छे चांसेस है वर्ल्ड कप जीतने के। पाकिस्तान इज आल्सो डूइंग वेरी वेल राइट नाउ, तो उसके भी काफी अच्छे चांसेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिनेरियो सेम रहेगा जैसा पाकिस्तान रहता है इंडिया में। तो आधे इन मैच दोनों तो पिच कंट्रीज के बनाने काफी वाले अच्छे चांस रहेंगे जितवा वर्ल्ड देंगे। कप। पहले राइट वीजा तो मिल जाए सो पाकिस्तान वालों को। बट हाँ राइट हाँ, वो भी उनको हाँ, एयरपोर्ट पे रोक लेंगे, वो तो लोग इस समय तो कोविड की ऑब्वियसली वजह से। नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो अगर करना भी है, इफ यू वांट टू लुक हैव अ लुक कि रोहित शर्मा करना चाहिए कैप्टनसी या फिर कोई और होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप के बाद ही होगा। इफ वी समहाउ लूज द वर्ल्ड कप, सो यू कैन ट्राई फॉर दैट। बट अगर आप वर्ल्ड कप गलती जीत जाते हो या फिर अच्छी तरह जीत जाते हो, तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता कि कोई और कैप्टन लाया भी जाए। until Virat Kohli do not take a decision कि अब he wants to take rest and he wants to prepare a new captain for future in the team, जो MS धोनी ने लिया था अपने टाइम पे कॉल कि अब मैं कैप्टन से नीचे उतर रहा हूँ and been here for एमएस धोनी की 1 and मजबूरी थी। 1.5 एमएस year। धोनी की मजबूरी थी। टेस्ट में इंडिया की हालत ऐसी हो गई थी कि उसको क्रिटिसिज्म बहुत मिल रहा था कि आप टेस्ट में तो आप बैकआउट करो, आप जबरदस्ती ऊपर मत बैठो। इसलिए टेस्ट में उन्होंने बहुत जल्दी लेना पड़ा। But then टेस्ट में जैसा हमने देखा, he used to back विराट कोहली, used to tell him what has to be done throughout the game. Sometimes हमको लगता था कि कोहली ही एक्चुअल में कैप्टेंसी कर रहा है, विराट कोहली जस्ट
being there and sitting and just listening to him. So 2 that साल तक हमें ऐसा ही we लगा। all have seen. Right. So अगर विराट कोहली उस तरह का रोल प्ले करना चाहते हैं after this World Cup, then it should be his call and the management call. And I Then think again, that will I be good think Rohit क्योंकि Sharma is विराट not the कोहली perfect next 4 to person. 5 years. I think Rohit Sharma is not the perfect person. Yeah, for exactly. the team. Because वो रोहित शर्मा, I totally agree because रोहित शर्मा अभी से 2 से 3 साल या मैक्स टू मैक्स 4 साल और खेल लेंगे टीम के लिए। 23 उससे ज्यादा आई World Cup, डोंट थिंक खेलेंगे 23 वर्ल्ड कप जिस तरह का हमारी टीम का सिनेरियो चल रहा चलेगा है। राइट, उससे ज्यादा प्लस आपकी बेंच में बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। सो ऑब्वियसली आई थिंक जल्दी जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो जल्दी नीचे आएंगे और जो जूनियर्स हैं उनको चांस मिलेगा। सो आई थिंक अगर ट्राई कर भी रहे हो किसी कैप्टनसी के लिए तो रोहित शर्मा को ना करके किसी जूनियर को उठाओ जो कि कैपेबल है एंड जो कि थोड़ा लॉन्ग टाइम पे रहने वाला है टीम में। सो ही विल बी नो हाउ टू हैंडल द टीम। दैट्स व्हाट माय थॉट इज। इस चीज में मुझे पार्थ की बात को मैं बैक करूंगा कि इस चीज में आईपीएल का पॉइंट आता है कि आईपीएल के अंदर आपकी अलग-अलग टीम्स में जो यंगर कैप्टन्स हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटी दो, ऊपर आओ, आप उनको टी20 इंटरनेशनल में कैप्टनसी की अपॉर्चुनिटी दो कभी-कभी बीच-बीच में। राइट। स्पेशली श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल, ये 2 प्लेयर्स हैं जिनको आप चांसेस दे सकते हो कैप्टन बनाने के। So I think that is it for What today. about Pant? Also Pant can be given chances. मतलब आप शफलिंग भी कर सकते हो कि एक फॉर्मेट में किसी एक को परमानेंट कैप्टन बना दो, बीच में आप किसी को वाइस कैप्टन बदलते रहो, या ओडीआई में कभी-कभी आप अपॉर्चुनिटी दे दो जब कोहली ना खेल रहा हो टीम में। Ashwin can be given chance. अश्विन पहले टीम में तो आ जाए, वो कोहली सिर्फ टेस्ट में रहा है। की बात कर रहे हो तो अश्विन कैन बी गिवन चांस। नहीं, टेस्ट की बात अलग है, लेकिन टी20 और ओडीआईज में पहले टीम में तो हो, टीम में तो जगह हो, बेंच स्ट्रेंथ में काउंट तो हो। अश्विन वो जो प्लेयर पंजाब की टीम के लिए एज अ कैप्टन, पंजाब की टीम के लिए एज अ कैप्टन क्या रहा अश्विन का स्टेटस, क्या कहता है? उसने काफी स्ट्रेंथन कर दिया था टीम को, सेमीफाइनल्स तक लेके जाने लग गया था। बट अश्विन को आई थिंक क्रिटिसिज्म मिला है, मतलब क्रिटिसिज्म तो क्या मिला है उसको, कोहली ने कैप्टन बनने के बाद उसको साइडलाइन कर दिया, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। जैसे ही कोहली कैप्टन बना था विद इन 1 ईयर जडेजा और अश्विन को दोनों को टीम से बाहर मतलब कर दिया गया था रेस्ट के नाम पर, रेस्ट देने के लिए उनको। और फिर उसके बाद से अश्विन तो ओडीआई और टी20 में वापस आया ही नहीं, जडेजा आ गया। जडेजा ने क्योंकि बहुत किलर परफॉर्मेंसेस दी थी और ऑलराउंडर के लिए हमेशा टीम में जगह इजीली बन भी जाती है। So, do anyone else wants to add something or we should wrap it up? Okay, I'm stopping the recording now. I think pack up. Okay. Just talking. Talking. Just talking.